دوست احباب کافی ہیں دیکھنے والے، ابھی جڑ رہے ہیں کچھ دوست. تو یہ ماہ مبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہوتا ہے. اس میں ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر عبادات کرنے کی کوشش کریں. محترم جی السلام علیکم سر. مگر آپ کی شکل تو نہیں آ رہی ہے. چلیں کوئی بات نہیں، آپ اب سٹارٹ کریں. کچھ لوگوں کو دکھ رہی ہے، کچھ کو پرابلم ہوگی. ابھی تو کچھ ٹیکنیکلی اس میں فالٹ آ رہا ہے. جی ہاں، آپ درس سٹارٹ کر دیں، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیسا رہے گا آج کا. کل کے لیے پھر مت ٹھیک ہو جائے گا دھیرے دھیرے. چلو آج 15 اب منٹ کرتے ہیں. پہلی بار ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہے گا آج کا، پھر دیکھتے ہیں. آگے کے لیے تھوڑا تھوڑا پھر پریکٹس ہو جائے گی نا، تو پھر جوائن کرنا آسان ہو جائے گا. جی الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المبین: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر الی الآخر. رواہ بیہقی فی شعب الایمان. اطر اللہ تعالی مرکدہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. میرے پیارے ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں. میں نے قرآن مقدس کی وہ آیات بینات آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں جو آیات بینات سورہ بقرہ سے تعلق رکھتی ہیں. سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے. اس کا نام ہے سورہ بقرہ. 286 آیات بینات پر مشتمل ہے. 40 رکوات اس سورہ مبارکہ کے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے الفاظ جو ہیں وہ 6031 ہیں، اور یہ سورہ مبارک جو ہے میرے وہ 20,000 اور 31 ہیں. پر مشتمل ہے. تلاوت کے لحاظ سے جب ہم قرآن مقدس کی ترتیب دیکھتے ہیں تو ترتیبی تلاوت کے لحاظ سے یہ سورہ مبارک قرآن مقدس کا دوسرا سورہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنو. ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی پکار رہے ہیں، اپنی طرح متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. کتبہ تم پر فرض کیا گیا، علیکم تم پر،
सियाम सियाम कमा उसी तरह कुतिबा फर्ज किया गया था अलल्लज़ीन उन लोगों पर मिन कब्लिकुम जो आप से पहले थे, यानी रोजा आप पर फर्ज किया गया है और आपसे पहले जितनी भी कौमें पैगंबरों पर ईमान लाई उन पर भी रोजे फर्ज थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि आप परहेजगार बन जाएं, ताकि आप अल्लाह ताला को तकवा इख्तियार करें, ताकि आप अल्लाह ताला से ज्यादा करीब हो जाएं, ताकि अल्लाह ताला आपको अपने बंदू में शामिल करे, ताकि आप अपने आप को अल्लाह के आगे प्यारा तस्लीम कराएं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो आप पर रोजे फर्ज किए गए हैं। ये रोजे फर्ज जितने भी पैगंबर आए 1,23,999 तमाम पैगंबरों पर रोजे फर्ज किए गए थे और जितने पैगंबरों के उम्मती थे उन उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ईमान वालों से फरमाइए कि आप पर भी रोजे फर्ज किए गए। ये रमजानुल मुबारक 18 महीने हिजरत को हो चुके थे। वो 18वां महीना माह शाबान था। माह शाबान की आखिरी दिन था। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह ताला की वो आयात उन पर नाजिल फरमाई, या रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए ये पैगाम पहुंचाया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना जो आने वाला है ये वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया है। ये कुरान ऐसी किताब है हुदल लिन्नास, हर एक जो जमीन पर बसने वाला इंसान है उसके लिए ये हिदायत की किताब है। और अल्लाह ताला ने जो ही ये आयात बय्यनात नाजिल फरमाई, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनाति मिनल हुदा, और हिदायत के इस रास्ते में जितने भी बय्यनात हैं, वाज़िह निशानियां हैं, वो इसमें हैं। वल फुरकान, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली ये एक किताब है कुरान मुकद्दस। इस्लाम और कुफर के दरमियान फर्क करने वाली मुकद्दस किताब है। सच और झूठ के दरमियान फर्क करने वाली मुकद्दस किताब है। और ये वो किताब है जो फुरकान है, फर्क करने वाली है। यानी फुरकान में इस कुरान मजीद में फरमाया गया है, वला तक़ूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह ताला के राह में शहादत पाएं, जो अपनी नजरानों का अल्लाह ताला के दरबार में कुर्बानियां दें, उन्हें आप हरगिज मुर्दा न कहो, बल अहया, बल्कि वो
शहादत पाने वाले लोग, अल्लाह की राह में शहादत पाने वाले, अल्लाह की राह में अपनी जान देने वाले लोग, वो जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। वला किल्ला तशउरून, मगर आपको उसका शऊर नहीं है। कोई अगर आज कहीं पर भी खड़ा होकर ये कहे शहीदों को कि वो दहशतगर्द थे, वो ट्रेटर थे, हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। न हमें तब तस्लीम था, न आज तस्लीम है और न आइंदा होगा। शोहदा की जमानत जिंदा होने की अल्लाह ताला ने दी है। 13 जुलाई 1931 को असर की अजान देने पर हमारे यहाँ कश्मीर के 22 गयूर मुसलमान शहादत का जाम नोश कर गए और उन 22 मुसलमानों ने अजान को अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि 22 शहादतें देकर वो अजान पूरी की। दुनिया की तारीख है, दुनिया की तारीख में ये लिखा जा चुका है कि मुसलमान जो कश्मीर में रहते हैं वो बुज़दिल नहीं है, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि कश्मीर के मुसलमान इतने बहादुर और बागैरत हैं कि उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों ने सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर 22 शहादतें दी, मगर अजान को अधूरा नहीं छोड़ा। उन शहीदों को कोई अगर आज उसके खिलाफ जबान दराजी करे, उनके खिलाफ कुछ बोले, वो हम वैसे थे मुसलमान 2 अरब दुनिया में रहते हैं, यानी 200 करोड़ मुसलमान हैं। किसी शहीद के खिलाफ बदजुबानी करना 200 करोड़ मुसलमानों को नाराज करने के मुतरादिफ है और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आजारी के मुतरादिफ है। हमारे अल्लाह जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक और हाकिम है, उसको नाराज करने के मुतरादिफ है। इसलिए जिसने भी वो जबान दराजी शोहदा के बारे में की, 13 जुलाई 1931 के शोहदा के बारे में, उसे पूरी कौम को माफी मांगनी चाहिए। उससे हमारा ये पैगाम जाना चाहिए आपकी वसातत से कि वो शोहदा जिंदा है, उन्होंने इस कश्मीरी कौम को बहादुरी सिखाया है, बुज़दिली नहीं सिखाया है। और आपको पूरी कौम के सामने माफी मांगनी होगी। और आप ऐसे लोग हो जो यहाँ कश्मीर में आग लगाना चाहते हैं, अमन को दरहम बरहम करना चाहते हैं। आप अमन के दुश्मन हो। जब आप अमन के दुश्मन हैं तो अमन के दुश्मन के लिए PSA काफी है कानून के मुताबिक। मेरे ख्याल से पुलिस को इस पे नोटिस लेनी चाहिए और इसे PSA के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, ये वो किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमजानुल मुबारक में नाजिल फरमाई है और इसमें वाज़िह निशानियां बयान फरमाई हैं। वल फुरकान, और ये हक और बातिल में, सही और गलत में, इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली किताब है। फमन शहीद मिनकुम शहरा, बस आप में से जो कोई इस माह को पाले, फल यसुम, उसे रोजा रखना चाहिए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ही ये आयात बय्यनात नाजिल अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजकर फरमाई, तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाब के दरमियान मस्जिद नबवी में अला साहिब सलातु वसलाम मिंबर अतहर
अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम पर खड़े होकर, जैसे कि सलमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़ाल खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिर यौमिन मिन शाबान। शाबान का आखिरी दिन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, यानी मिंबर अतहर पर चढ़े, असर की नमाज के बाद शाबान का आखिरी दिन था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातिब हुए, फ़क़ाल, पस फरमाया, या युहन्नास, जमीन पर बसने वाले लोगो, कद अज़ल्लुकुम शहरुन अजीम, आप पर अजमत वाला महीना साया फगन होने वाला है। ये अजमत वाला महीना रमजानुल मुबारक है। ये अजमत वाला महीना माह मुबारक है। यह अजमत वाला महीना माह सियाम है। और अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी पैगंबर जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरुन मुबारकुन, और ये महीना बरकत वाला महीना है। ये अजीम महीना ही नहीं है बल्कि बरकत वाला महीना है। शहरुन फीहि लैलतुन, ये वो महीना है जिसमें एक रात है, खैरुम मिन अल्फ शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर है। जालल्लाहु सियामहु फरीजा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमजानुल मुबारक में रोजा रखना आप पर फर्ज करार दिया है। वक़ियाम लैलिही ततव्वअन, और इस रमजानुल मुबारक में कयाम करना, तरावी पढ़ना, रात को नमाज पढ़ना, ये नफल करार दिया है। नफल समझकर हमें तरावीह पढ़नी चाहिए। नफल और फर्ज में ये फर्क है, फर्ज अगर न पढ़ें तो गुनहगार होगा, अल्लाह के सामने मकबूज होगा। मगर नफल नमाज के बारे में आपको ये रखना चाहिए, तहियतुल वुजू, वुजू करने के बाद जब हम नमाज 2 रकात पढ़ते हैं, जिसे तहियतुल वुजू कहते हैं, अगर ये तहियतुल वुजू की 2 रकात नमाजें हमने नहीं पढ़ी तो गुनाहगार नहीं होंगे। हाँ, अगर पढ़ी तो सवाब मिलेगा। इसी तरह मस्जिद में जाते हैं और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था, जब वो मस्जिद में जाते थे और तहियतुल मस्जिद नमाज अदा फरमाते थे। जैसे कि मेराज के मौके पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो फरमाया, ए बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप मुझसे पहले जन्नत में पहुंच चुके थे। आप कौन सी अमल कर रहे हैं कि आप मुझसे पहले जन्नत में पहुंच चुके थे। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कोई अमल नहीं है, मगर एक अमल मैं मुसलसल करता हूं। जब भी मैं वजू करता हूं तो मैंने कोई वजू ऐसा नहीं किया होगा जिसकी तहियतुल वजू 2 रकात नमाज अदा न की होगी। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब मरम्मत फरमाया तो उन्होंने वापस जवाब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी हो सकता है। और जो एक सहाबी थे रदी अल्लाह अन्हु, उसे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि आप मुझे कसरत सुजूद के साथ मदद कीजिए तो आप जन्नत में मेरे साथ रहेंगे। वो गोया कि एक मुसलमान जब वजू फरमाए तो उसकी नफल की 2 रकात नमाज अदा करें। जब मस्जिद में जाएं तो मस्जिद में बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा करें। अगर करेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो गुनाहगार नहीं होगा। जैसे कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़ियाम लैलिही ततव्वअन, और इस रमजानुल मुबारक में कयाम करना, इस रमजानुल मुबारक में रात को नमाजें पढ़ना, तरावीह पढ़ना, ये आपके लिए नफल करार दिया गया है। मन तकर्रब बिही बिखसलतिन मिनल खैर कान कमन अदा फरीजा, जो इस रमजानुल मुबारक में एक नफल या सुन्नत अदा करेगा उससे एक फर्ज की मुजूर, ये जैसे फर्ज जैसे उसने अदा किया होगा। नफल नमाज अदा करने पर, सुन्नत नमाज अदा करने पर उसे फर्ज का सवाब मिलेगा। और रसूल रहमत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन अदा फरीजतन, जिसने एक फर्ज इस रमजानुल मुबारक में अदा किया, फी कान कमन अदा सबईन फरीजा, जैसे कि उसने बाकी दिनों में यानी 11 महीनों में 70 फराइज अदा किए हों। आज एक फर्ज अदा करना 70 फराइज के बराबर करार दिया गया है। वह हुआ शहरुस सब्र, और ये सब्र का महीना है। वह सब्र सवाबुल जन्नह, सब्र जन्नत, इंसान को सब्र जन्नत तक ले जाता है। वह सब्र सवाबुल जन्नह, और जो सब्र सीखेगा इस महीने में, उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको इसका अजर जन्नत ही मिलेगा। और ये हदीस मुबारक आज पूरी नहीं हो सकती है, इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में इससे आगे मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आपका, आप आए और आपने अपना वक्त दिया। बहुत कीमती वक्त है इस वक्त, क्योंकि तरावी का भी वक्त हो चुका होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर अरीब से साहब, मेरी एक प्रोग्राम गुजारिश है शुरू हुआ। आपसे, जी मोहतरम। आधे घंटे का नहीं 15 मिनट का प्रोग्राम रखा करेंगे, क्योंकि नमाज का भी ख्याल रखना है। जी जी, मैं भी चाहता हूँ 15 मिनट का ही हो, साढ़े लेकिन आज ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। सात से सवा सात से 7:30 तक करते रहेंगे। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15 मिनट भी बहुत होते हैं, ज्यादा देर बिल्कुल लेक्चर कोई नहीं सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम ठीक वालेकुम। है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।